Good afternoon, all of you. In the last class, we have to studied about order pair and Cartesian product of two sets. Now we are going on exercise 2.1. In exercise 2.1, question 1, 2 and 3 are completed. Now question number 4. State whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. Voice आ रही है बेटा proper? Yes, sir. Question number 4. State whether each of the following statements are true or false. Question number 4 में क्या given है? Statement given है आपको. क्या given है? Statement. क्या find करना है कि statement true है या false है? If statement is false, then rewrite given statement correct. First question number 4, first वाला part. Question 4, first part. Set P element M and N. Set Q elements are N, N. Set P and set Q क्या रिलेशन है दोनों में? Set P and set Q क्या रिलेशन है? What is the relation between P and Q? सौरभ, Cartesian multiplier. सेट्स P एंड Q में क्या रिलेशन है? इक्वल सेट है, सबसेट है? Equal set है सर. इक्वल सेट दोनों, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ P एंड Q आर सेम. P क्रॉस Q गिवन है क्वेश्चन में. P क्रॉस Q स्टेटमेंट क्या गिवन है? P क्रॉस Q और वैल्यू गिवन है ऑर्डर पेयर फॉर्म में M, N, N, M. तो दिस स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स. False because in P cross Q two order pair are remaining. In P cross Q order pair M order pair है तो फर्स्ट जो एलिमेंट है which is belongs from set P and second element it belongs from set Q. तो M, N, M, M, N, N and N, M. This is the correct set of P cross Q. Any problem? Any problem? No. Second statement, if A and B are non-empty set, then A cross B is non-empty set of order pair X, Y such that X belongs to set A and Y belongs to set B. So this statement, A and B are non-empty set. It means A में भी कुछ element है और B में भी कुछ elements हैं. Then set of order pair X A cross B is non-empty. A फाइनाइट सेट है, B भी क्या फाइनाइट सेट है, तो A क्रॉस B क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा. इट मींस नॉन एम्प्टी सेट होगा. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. जो सेकंड स्टेटमेंट है ट्रू होगा फॉल्स होगा? True. बिकॉज A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट, तो देन A क्रॉस B ऑल्सो नॉन एम्प्टी सेट. Third, if A set elements are 1, 2, set B elements are 3, 4, then A cross B, then
A cross B intersection phi is equal to phi. This statement is true or false, Saurabh? True. True. B intersection phi. Phi, it means null set. B intersection phi. तो intersection of B set and null set, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है. इट मीन B क्रॉस phi क्या होगा, null set. देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन phi, इट मीन जो सेकंड जो सेट है वो क्या है, इम्पिटी सेट है. तो देन A क्रॉस phi ऑल्सो null set. A cross phi also null set. It means given statement is true. Given statement is true. Any problem in question number 4? No, sir. Next question number 5. If A is equal to set A elements -1 and 1. A set element -1 and 1. Find the value of A cross A. It means Cartesian product of three sets. Cartesian product of three sets. Cartesian product of three sets. इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट जो ऑर्डर पेयर जो फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर. ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर. ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर. बिकॉज जो ऑर्डर पेयर है उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3 एलिमेंट्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट. A क्रॉस किसके इक्वल होगा, -1 -1 -1. A सेट ही है, अनदर कोई सेट है नहीं, तो इट मीन्स A क्रॉस A. जब आप A क्रॉस A फाइंड करोगे इट मीन्स -1 और -1. फिर अगेन क्या करना है, A सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो -1. और क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1 1 1. टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन A क्रॉस A? 8 होंगे. इट मीन्स 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, इट मीन्स 8 एलिमेंट्स. तो 1 एलिमेंट तो -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1. ये भी ट्रिपलेट ऑर्डर पे आ सकता है. और 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 and 1 1 -1 1. ये तो ऑलरेडी कंसिडर, ये तो ऑलरेडी कंसिडर. वन -1 -1 1 1 1. नेक्स्ट -1 -1 -1 -1 -1. Very good. 1 2 3 4 5 6 7. 1 element are remaining. क्या होगा नेक्स्ट ऑर्डर पे हो, 1 -1 -1. 1 -1 -1 1 -1 -1. तो these are the 8 triplet order pair.
और तरीके से भी कर सकते हो उसको। सेकंड मेथड, फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट ए क्रॉस ए। फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्या होगा? -1 1 1 1 1 -1 एंड -1 -1। ए क्रॉस ए सेट्स। अब नाउ दिस इज कॉल्ड बी। ए क्रॉस ए की जो वैल्यू है उसको एज्यूम कर लिया कि लेट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए बी के इक्वल होगा। इट मीन्स बी क्रॉस ए, बी ए, बी सेट, दिस इज द बी सेट, और ए सेट -1 1। तो इट मीन्स -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 1 and -1 -1 and 1। सेकेंड मेथड भी इजी है। वट एवर यू कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 5। एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 5? Now question number 6. If A cross B, क्या गिवन है? वैल्यू ऑफ A cross B इज इक्वल टू सेट ऑर्डर पेयर A, X, A, Y, B, X, B, Y। क्या फाइंड करना है? सेट A एंड सेट B। A cross B, given A cross B, A, X, A, Y, B, X, B, Y। AX, AY, BX, BY। Find A and B। Value of A and B. It means set A or set B. In order pair, first element is belongs to set A and second element is belong from सेट बी। set B। तो it means A set में जो element होगा A first element, then B। ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट जो एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है विच इज बिलोंग्स फ्रॉम सेट ए। तो इट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ए एंड बी, तो ओनली 2 एलिमेंट्स इन सेट बी। सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज बिलोंग फ्रॉम सेट बी। तो सेकंड एलिमेंट कंसीडर करो x, y। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सेट ए एंड सेट बी। गॉट इट? यस सर। Now question number 7. Now question number 7. Now question number 7. Question number 7. Let A, set A or elements 1, 2, set A
element 1, 2. Set B, elements are in set B 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Set B, set C, elements in set C 5 and 6. And set D, elements 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7 and 8. This is the 4 set A, B, C and D. Verify that first part A cross B intersection C. It means cardinal product of B intersection C and set A is equal to A cross B intersection A cross C. So firstly we have to find value of A cross B and A cross C. It means Cartesian product of set A and set B and Cartesian product of set A and set C. A cross B. Order pair form में first element of order pair is belong from set A 1, 1, 1, 2, 1, 3 and 1, 4. Next element 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3 and 2, 4. बेटा आप भी साथ में थोड़ा इंटरेक्ट किया करो. तो A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A एंड B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर फॉर्म में 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. This is the value of A cross B. Got it? Yes, sir. Now A cross C. Now A cross C. A cross C. A सेट में एलिमेंट 1, 2, C सेट में एलिमेंट 5, 6. A क्रॉस C में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? हाउ मेनी एलिमेंट्स? 4. 4. तो A क्रॉस C तो 1, 1, 5. सेकेंड ऑर्डर पेयर 1, 6. नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 2, 5 and 2, 6. A cross B intersection A cross C. A cross B intersection A cross C. Intersection, how to find intersection of two set of common elements of set A and set B. So A cross B, this is the value of A cross B or this is the value of A cross C. So how many order pair are common? 0. 0. Null set 5. 5 या null set. तो A cross B intersection A cross C is equal to null set. Now we have to find B intersection C. Now we have to find B intersection C. B intersection C. One, 2, 3, 4 set B intersection C. Elements in set C. So no one element is common between set B and C. So then B intersection C 5. Got it? Yes, sir. So now a Cartesian product of A and B intersection C 5. It means when B intersection C set क्या है 5 है, it means element तो ऑर्डर पेयर फॉर्म ही नहीं होगा. इट मीन्स A क्रॉस B इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या होगी 5. इट मीन्स तो लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड और दिस इज द राइट हैंड साइड. तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
right hand side. It means first result is verified. Got it? Yes, sir. Next, A cross C is a subset of B cross D. Second part, A cross C is a subset of B cross D. Now we have to find value of B cross D. B cross D. वन टू थ्री फोर बी सेट में एलिमेंट और डी में 5 6 7 8. तो 1 5 2 5 3 5 4 5 2 6 2 7 2 6 1 5 2 5 3 5 4 5. Next 1,6 2,6 3,6 4,6 1 7 2 7 3 7 and 3 8. One 7 2 7 3 7 and 4 7. 4, 8, और next 1 8 2 8 3 8 and 4 8. This is the value of B cross D. Now A cross C is the subset of B cross D. Statement A cross C is the subset of B cross D. तो A cross C, value of A cross C 1 5 1 6 2 5 2 6. तो every value is present in B cross D. 1 5 1 5 1 5 1 6 1 6. Next 2 5 2 5 और next 2 6. So all the order pair of set A cross C is present in B cross D. Then we can say A cross C is the subset of B cross D. Got it? सर फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया. फर्स्ट वाला फर्स्ट पार्ट, हाँ 7 का फर्स्ट पार्ट. सेवंथ का फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्टली सेट A set, B set, C set, D set. Value of A set, B set, C set, D set are given in the first part. A cross B intersection C. It means B intersection C. Value of B intersection C क्या होगा? Set of common elements of set B and C. B और C में जो common elements हैं उनका set वो क्या होगा? B intersection C. तो B intersection C देखो, B intersection C, B सेट देखो 1 2 3 4 और C सेट है 5,6. दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है B और C में? नो सर. तो दोनों सेट में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या होगी? नल सेट. कुछ एलिमेंट Yes, sir. कॉमन ही नहीं है, तो B क्रॉस C की वैल्यू क्या होगी? नल सेट. तो B क्रॉस Yes, C नल सेट. और नाउ A क्रॉस B क्रॉस C. जब B क्रॉस C क्या है? नल सेट है, तो A क्रॉस नल सेट क्या होगा? नल सेट ही आएगा. नल सेट. जब B क्रॉस C में कुछ एलिमेंट नहीं है, इस सेट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट, B क्रॉस C सेट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो जब A क्रॉस आप A क्रॉस B इंटरसेक्शन C जब फाइंड करोगे, इट मींस B
इंटरसेक्शन सी में कुछ एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स ऑर्डर पेयर फॉर्म नहीं होगा, तो देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या होगी, नल सेट। और ए क्रॉस बी ए में एलिमेंट 1,2 और बी में एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 तो देन ऑर्डर पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4. Similarly, we can find the value of A cross C. So it means Cartesian product of set A and C. ऑर्डर पेयर फॉर्म में आएगा, और जो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का विच इज बिलोंग फ्रॉम सेट ए और सेकंड एलिमेंट इज बिलोंग फ्रॉम सेट सी, तो 1 5 1 6 1 5 1 6 2 5 5 and 2 6. This is the value of A cross C. A cross C intersection A cross B, intersection of A cross B and A cross C. How to find intersection? Common element, set of common elements. तो A cross B और this is A cross C, तो कुछ common element है इसमें, No, sir. तो this then the value of A cross B intersection A cross C किसकी इक्वल होगा, नल सेट। No, तो यहाँ sir. से वैल्यू क्या आ रही थी अपने पास, A cross B इंटरसेक्शन, ये भी 5 आ रहा था और इसकी वैल्यू क्या 5, इट मीन्स द फर्स्ट पार्ट इज वेरीफाइड। गॉट इट? Yes, sir. In second part, B cross D, B में एलिमेंट है 1 2 3 4 और D में एलिमेंट है 5 6 7 8, B में 4 एलिमेंट, D में भी 4 एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट्स इन B cross D 16, इट मीन्स 16 ऑर्डर पेयर, 16 order pair, or order pair is derived from set B and D. First element of order pair is come from set B and second element of order pair is come from set D. So this is the value of B cross D, 1 5 2 5 3 5 4 5 1 6 2 6 3 6 4 6 1 7 2 7 3 7 4 7 1 8 2 8 3 8 4 8. This is the value of B cross D or this is the value of A cross C. So it means all the elements of A cross C, all the elements of A cross C is present in B cross D. All the elements of A cross C is present in B cross D. It means 1 5 order pair present, 1 6 this is also present, 2 5 2 5 2 6. So all the elements of A cross C is present in set B cross D. So then we can say A cross C is the subset of B cross D. Got it? Yes, sir. Now next question. Question number 8. Let A set 1,2, B set 3,4, write A cross B. तो A cross B की वैल्यू क्या होगी, ऑर्डर पेयर फॉर्म में 1 3 1 4 2 3 2 4, 4 elements. How many subset will A cross B have? 16. A सेट में एलिमेंट 1 2, B सेट में एलिमेंट 3 4. Question 8. Set A एलिमेंट 1,2, set B एलिमेंट 3,4. Find the value of A cross B. Set of all the order pair from set A to set B. It means 1 1 3 1 4 2 3 and 2 4. This is the value of A cross B. N of A cross B. It means total number of elements in A cross B is 4. Total number of elements in A cross B 1 2 3 and 4. So total number of elements in set A cross B is 4. Total number of subset
सबसेट ऑफ A क्रॉस B 2 की पावर 4 if set A contain m element then total number of elements in subset of A is 2 की पावर m। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं 4, तो A क्रॉस B का जो सबसेट है उसमें कितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर 4, इट मीन 16 एलिमेंट। वैल्यू भी मेंशन करनी है। सबसेट कौन कौन सबसेट होंगी, फर्स्ट तो क्या हो जाएगा नल सेट। Null set is the subset of every set A cross B. Every set is the subset of itself, तो A cross B भी होगा। Next 1 3 1 4 2 3 2 4 single element, then we take two elements, then we take 3 elements, and we take 4 elements 1 3 1 4। Similarly we take 1 4 2 3 2 3 and 2 4 2 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4। Now we take 3 elements 1 3 1 4 2 3 1 4 2 3 2 4 2 3 2 4 1 3 और लास्ट 4 एलिमेंट्स, तो A क्रॉस B। 1 3 2 3 भी तो होगा। हाँ 1 3 2 3 हो जाएगा, मेंशन नहीं किया कि 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3। Now we take 3 elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 elements are remaining। 3 elements 1 3 1 4 2 3 1 4 2 3 2 4 2 3 2 4 1 3 and 2 3। कौन सा एलिमेंट रिमेनिंग रहा 1 3 1 4 2 3 1 4 2 3 2 4 2 3 2 4 1 3। नेक्स्ट 1 3 1 4, कौन सा एलिमेंट रिमेनिंग रहा 2 4 1 3 1 4 2 4 ये रिमेनिंग रहेगा, और एक टोटल जो 4 एलिमेंट्स हैं वो वाला सेट, तो 11 तो वो तो हो गया ना A into B। 16 सबसेट आएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 11। 12th वाला कौन सा होगा 1 3 1 4 2 3 12। 13 वाला 1 4 2 3 2 4। 14 वाला 2 3 2 4 1 3। 15 वाला 1 3 1 4 2 4 15। और 16 वाला एक एलिमेंट और रिमेनिंग है, कौन सा एलिमेंट रिमेनिंग है 2 4 2 3 1 3। we can write 1 3 1 4 2 3। next 1 4
1 4 2 3 and 2 4. Next 2 3 2 4 1 3, 2 3 2 4 2 3 2 4 and 1 3. वन टू थ्री सर 1424 नहीं हुआ शायद 1 4 2 4. 24 नेक्स्ट 1 4 2 4 और 2 3. 1 4 2 4 and 2 3. लास्ट नहीं सर 1424 बस दो सेकंड वाला नहीं हो गया. 1 4 2 4. ओके. वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. वन एलिमेंट एंड आर रिमेनिंग. कौन सा रिमेनिंग है? चारों का एक साथ वाला. वो तो आ गया ना, ए क्रॉस बी. चेक करो कौन सा रिमेनिंग है. सिंगल एलिमेंट है सारे आगे. 1 3 1 4 2 3 2 4. फिर डबल में 1 3 1 4 1 3 2 1 3 1 3 2 3 वाला रिमेनिंग है. 1 3 2 3 1 3 2 3 नहीं लिखा ना. 1 3 1323 1 3 2 3 नहीं है ना इसमें. सर ये रहा नीचे से थर्ड लाइन में. 1 3 2 3 हो गया. ठीक है. 1 3 2 4 1 3 2 4. फिर देन 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 1 3 1 4 1 3 रिमेनिंग है. स्टार्टिंग में 1 4 और देन 1 3. सर 1413 भी हो गया ना ऊपर 1314 वो तो हो गया बेटा 1 4 वाला ये जो एलिमेंट है एंड 1 3. ये भी तो हो सकता है. सर लेकिन सेट में तो ऑर्डर ओके ओके ओके. सॉरी ऐसा भी हो सकता है ना. सॉरी सॉरी. वन थ्री 1 4 ले लिया. 1 3 2 3 1 3 2 4 1 3 2 4 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 4 1324 1324. 1 3 2 4 हो गया. 1 4 2 4. इसके बाद 3 3 में देखो 1 3 1 4 2 3. फिर 1 4 2 3 2 4. नेक्स्ट 2 4 1 4 1 3 2 4 1 4 1 3 2 4 1 4 1 3. ये नहीं है ना इसमें 2 4 1 4 3 थर्ड वाला 2 4 1 4 एंड 1 3. 2 4 1 4 एंड 1 3. ओके. तो ये जो लास्ट वाला जो सेट्स रिमेनिंग था वो क्या आएगा? 2 4 1 4 एंड 1 3. दिस इज द 16 सबसेट ऑफ A क्रॉस B. Got it? यस सर. Now next question. Question number 9th. Let A and B be two sets such that n of A 3, n of B 2. Number of elements in set A is equal to 3 or number of elements in set B is 2. If
order pair x comma 1 y comma 2 z comma 1 are in A cross B. Question 9. N of A is equal to 3. Total number of elements in set A is 3. Total number of elements in set B is 2. If x1 order pair x comma 1 y comma 2 and z comma 1 are in A cross B, belongs to A cross B. ये जो order pair है x comma 1 y comma 2 and z comma 1 belongs to A cross B. Find A and B. Find A and B. First of all, A cross B. A cross B. ये जो ऑर्डर पेयर है x, 1 y, 2 z, 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस B. तो A और B सेट फाइंड करना. इट मींस x, 1 x, 2 भी होगा, x, 3 ये नहीं होगा, x, A और B की वैल्यू निकालनी है। x1 y1 और z1, x1 x2 y1 y2, y1 y2. कितने A और B की वैल्यू निकालनी है? A एंड B की वैल्यू फाइंड करनी है. A में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट हैं. तो x1 क्या होगा? A क्रॉस B का पार्ट होगा, y2 भी होगा और देन z1. तो इट मींस सर वैसे क्लियर ही दिख रहे हैं एलिमेंट्स ए बी के। वो तो है बेटा. देखो एक बार A क्रॉस B से थोड़ा और इजी हो जाएगा. वैसे देखो A में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे. स्टार्ट जो ऑर्डर पेयर के जो स्टार्टिंग एलिमेंट है x, y, z. ए सेट में एलिमेंट क्या आ जाएंगे? x, y, z. ए सेट में एलिमेंट क्या आएंगे? x, y, z. और बी सेट में क्या आ जाएंगे एलिमेंट? 1, 2. ठीक है. देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B. इट मींस जो A सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे और जो B सेट उसमें कितने एलिमेंट होंगे? 2. जब आप A क्रॉस B फाइंड करोगे तो 6 एलिमेंट तो आएंगे. बट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये जो ऑर्डर पेयर है वो ऑलरेडी गिवन है. x1 x2 z1 और जो रिमेनिंग जो ऑर्डर पेयर है वो कौन से होंगे? y1 y2 z2. तो A सेट में एलिमेंट x, y, z और B सेट में एलिमेंट 1, 2. सर ये A क्रॉस B कैसे आया समझ नहीं आया। आपको क्या फाइंड करना है? A क्रॉस B ये जो ऑर्डर पेयर है वो A क्रॉस B में गिवन है आपको. क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B 2 एंड द ऑर्डर पेयर x, 1 y, 2 एंड z, 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस B. ये जो ऑर्डर पेयर है वो कहां से बिलोंग कर रहे हैं? A क्रॉस B. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेट A एंड सेट B. तो सेट A क्रॉस B में A क्रॉस B से बिलोंग कर रहे हैं. इट मींस जो A ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहां से बिलोंग करेगा? A सेट से बिलोंग करेगा. इट मींस फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? x, y एंड z. इट मींस A सेट में कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए? x, y, z. और B जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का विच इज कम फ्रॉम सेट B. इट मींस 1, 2 1, 2. तो 1, 2. जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे A क्रॉस B को तो जो रिमेनिंग ऑर्डर पेयर है वो क्या आएंगे? x, 1 x, 2 y, 1 y, 2 z, 1 और z, 2. ओके. इस तरह आ गया। तो क्वेश्चन 4 to 9. एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन 4 to 9. क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 6. क्वेश्चन 7. This is question 8.
क्वेश्चन 9। तो एक्सरसाइज 2.1 वो कंप्लीट कर लेना आप लोग। ओके, यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 इन सर नेक्स्ट 10th क्लास। क्वेश्चन भी, सर 10th एक क्वेश्चन बच गया। कौन सा क्वेश्चन? 10th नेक्स्ट पेज पे। Question 10. The Cartesian product of A cross A has nine elements along which are found -1, 0, 0, 1. Find set A and remaining element of A cross A. A cross A में कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A cross A इज 9। और जो एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस ए के वो आपको गिवन है। एक तो ऑर्डर पेयर -1, 0 और सेकंड 0, 1। फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। टोटल एलिमेंट्स 9, तो ए में 3 एलिमेंट्स और बी में भी 3 एलिमेंट्स। इट मीन्स सेट ए में कितने एलिमेंट होने चाहिए? 3 एलिमेंट। देन ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? 9। तो इट मीन्स सेट ए फाइंड करना है। सेट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए में 0, -1 एंड 1। अब यहाँ पे जो ऑर्डर पे जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो भी ए से आ रहा है और सेकंड एलिमेंट भी कहाँ से बिलोंग करेगा? ए से बिलोंग करेगा। तो ए सेट क्या जाएगा? 0, -1, 1। ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। व्हेन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए क्रॉस ए, 0, 0, 0, -1, 0, 1, -1, 0, -1, -1, माइनस का 1, 1, माइनस का 1, माइनस का 1 और नेक्स्ट 1, 0, 1, 1 और रिमेनिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, -1। These are the elements in A cross A. Got it? यस सर। ए क्रॉस ए में आपको क्या गिवन है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9। इट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। इसका मतलब ए सेट को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ए में कितने एलिमेंट होने चाहिए? 3 एलिमेंट होंगे, तभी क्या होंगे? 3 × 3 9 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? जब आप ऑर्डर पेयर को एनालाइज करोगे तो -1, 0, 0, 1, तो इट मीन्स 0, -1 1 ही हो सकता है। 0, -1 एंड 1 बिलोंग करेगा तभी तो ये ऑर्डर पेयर मिलेगा अपने को। तो इट मीन्स ए सेट में एलिमेंट 0, -1 एंड 1 और एंड देन ए क्रॉस ए। इजिली वी कैन फाइंड 0, 0, 0, -1, 0, 1, -1, -1, 0, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 0, 1, -1 और 1, -1। This is the value of A cross A. Any problem in question number 10? Any problem? नो सर। नो। So you can solve exercise 2.1 in the next class. We have to study about relation. First of all, we will discuss about relation. So knowledge of order pair and Cartesian product of two sets are important.
जो ऑर्डर पेयर और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको एक बार रिवाइज करना आप लोग. ओके. Yes, sir. Then Yes, sir. you can easily understand the concept of relation. Okay. Yes, sir.